Hello everyone, how's everyone doing? आज ही कह रहा मामू ने All good, sir. Fine. That's wonderful. Very well, sir. Good to see. मामू ने That's नहीं really बोला। nice. अरे मामू ने दूसरा Good जगह to फोन see कर everyone. दिया। कहाँ से आवाज आ रही है? Connecting to audio. कौन है ये? Oppo. 1 second. Can you please stop? Can you please mute yourself? Oppo A1. कौन है? हाँ, please mute. Thank you. Okay. Sunday. Happy Sunday, everyone. To you too, sir. Thank you so much. कैसा लग रहा है? Sir, How's you the Sunday look going? radiant in white. I look radiant in white. Thank you so much. White is beautiful. Nice. Thank you. So, how is Sunday treating you guys? Sir, could you repeat your question, please? I'm saying, how is Sunday treating you guys? Sunday is कैसा nice. गुजर रहा है? Sunday is No. nice. Sunday के Yes, साथ sir. बड़ी यादें जुड़ी रहती हैं Sunday मुझे is लगता like है. Sunday. Sunday is like relaxing day, chilling day, fun day, मस्ती day. कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं, कोई जवाबदारी नहीं. You can be lazy. Yes, You sir. can do I'm whatever you spending feel it like. with my little niece. You can. I'm spending it with my little niece. अच्छा, that's wonderful. That's very nice. Okay, how about Mona जी, कैसी हैं आप? Mona Patel ji, hi. Can you hear me? One sec. आपको आवाज आ रही है मेरी? I think इंटरनेट हैंग हो रहा है. मोना जी, आपकी तरफ से है? I think, yeah. Everyone else can hear me? बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Can you hear me Yes, as well? sir. Yes, sir. I think मोना जी की तरफ से हो सकता है. No problem at all. Okay, let's begin the session. शुरू करें? The Q&A series, the Q&A sessions. Okay, wonderful. Let's start. Okay. Hold on. Who is this? Who is disturbing in between? One sec. Okay, let's start with Divya Jain. Divya ji, बताइए. Divya Jain, 1 second. Did you come for the sessions earlier? Yes, sir. Sir, I've been in your sessions. तभी मुझे लगा, मैंने कहा नाम भी सुना, चेहरा भी देखा हो लग रहा है. Yes, sir. Everyone else, whoever wants to ask questions, please, once you raise your hand, 1 second, you can please switch on your video so that I can Yes. see you. Okay, बाकी सब mute कर लीजिए. Let's only listen to Divya ji. हाँ जी, Divya ji, बताइए. How have you been? I'm good, sir. How are you, sir? Wonderful, very nice. Tell me. Sir, your sessions have helped me a lot. Thank you. Yes, sir. Sir, I have a question. If we go through a breakup in a friendship or a close relationship, then there is a if we didn't expected that thing from another person, or we have been betrayed or cheated on, and what we feel is rejection, and the other person is only trying to say कि we are wrong or something. तो ये होता है कि सर वो रिजेक्शन फील होता है कि हमारी इतनी गलती थी क्या, या फिर ऐसा कुछ, और वो बहुत बुरा सा लगता है कि am I not a good person, और इतनी क्या गलती कर दी. और we have never expected सर कि उस पर्सन से एटलीस्ट कि मतलब ऐसा कुछ कि वो पर्सन ऐसा कुछ कभी कर भी सकते हैं. बाकी सब प्लीज म्यूट कर दीजिए. नेहा जी, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. लेट्स रिस्पेक्ट दिव्या जी. ओके, कंटिन्यू. यस, तो सर हम कभी एक्सपेक्ट या सोचे नहीं होते हैं उस पॉइंट पे कि ये ऐसा मतलब कभी कुछ एंड भी हो सकता है, या फिर मतलब ये चीजें ऐसी डायरेक्शन में भी जा सकती है किसी दिन. वो एक थॉट भी नहीं था और वो अचानक चीजें वैसी हो जाती है. तो सर वो रिजेक्शन भी फील होता है, वो बहुत बुरी वाली फीलिंग होती है, एंड वो ओवरकम नहीं हो पाता. वो थॉट्स कंटिन्यू भी चलते रहते हैं, क्या ऐसा क्या हो गया, या फिर जो भी है. सुनिए पहले एक बात बताइए. आपने कहा कि कभी ऐसा सोचा नहीं होता कि ऐसा कभी हो जाएगा, राइट? यस. क्या वाकई में कभी नहीं सोचा होता कि ऐसा कभी हो जाएगा? सोचो जरा ध्यान से, क्योंकि मुझे लगता है हम शायद बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर देते हैं. बहुत सारे रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप में नजर आते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके चलते रहते हैं. Yes. और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है. देखिए, आई एम श्योर थोड़ी बहुत जिंदगी आपने बताई है, कुछ समझा होगा लाइफ को भी. तो बहुत सिंपल है एक चीज.
यहाँ कीजिए। बहुत सिंपल है एक चीज की, कोई भी रिलेशनशिप है उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। और आपने इतने सारे रिलेशनशिप अपने आसपास भी देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी का ब्रेकअप नहीं हुआ, किसी का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर एक बारी, मिनिमम एक बारी हार्ट ब्रेक तो हुआ होगा। हो सकता है 2 बारी, हो सकता है 3 बारी, हो सकता है 4 बारी हो, लेकिन एक बारी तो जरूर हुआ ही होगा। तो हार्ट ब्रेक कब होता है? बात वहीं पर आ जाती है जब इंसान कहता है कि मैंने एक बारी भी ऐसा सोचा नहीं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। बट बात फिर वहीं पर आती है कि हमें उस रिलेशनशिप के अंदर भी, ये हर रिलेशनशिप में होता है कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जहां हमें लगता है कि शायद ये सही नहीं है, या शायद ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, शायद हम इस इंसान के लिए सही नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके चलते चले जाते हैं। फिर उसके बाद Yes, जब sir. चीटिंग होती है या बिट्रेल होता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटल हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में बिट्रेल होता है, डिसीविंग होता है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हमें ऐसा लगता है, पहली बात शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमेशा हमें खुद को सेल्फ डाउट करने की आदत है। या फिर इसके ऊपर की एक लेयर होती है जो सामने वाला करता है, वो आपको जिम्मेदार ठहराता है इस रिलेशनशिप के टूटने और खराब होने की वजह से। वो इसलिए Yes. क्योंकि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी अपने अंदर गिल्ट रखना नहीं चाहता। तो जब दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते तो अपनी गिल्ट खत्म हो जाती है। Yes, sir. तो बड़ा आसान है कि अगर मैं Mm. दूसरे पे ब्लेम कर दूंगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने गलत किया, तुम्हारी वजह से सिर्फ ये रिलेशनशिप खराब हुआ, तो बड़ा आसान है। मैं अब क्या हो गया, मैं सारी चीजों से मैंने छुटकारा पा लिया। नाउ नथिंग इज गोइंग टू ट्रबल मी, सो दिस इज माइंड्स वे। Mm. दिमाग को, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक दिमाग के अंदर बहुत सारे झूठ खुद से बोलते हैं ना, तो एक झूठ खुद को बोलना पड़ता है दूसरे वाले इंसान को, कि इस Mm. झूठ की वजह से वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। हम Mm. भी तो सुबह से लेकर रात तक खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं ना हर चीज के लिए। Mm. तो सामने वाला भी सिर्फ खुद को जस्टिफाई कर रहा है कि आपकी वजह से हुआ, और उसकी वजह से अपनी सारी चीजों को छोड़कर ब्लेम दूसरे पे डाल के, दूसरा अगर गिल्ट गिल्ट रिडन है, अगर आपके अंदर से गिल्ट शुरू से ही है, तो वो गिल्ट में और डाल देता है ताकि आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को और खत्म कर दो। क्योंकि इस समय Yes, sir. उसको खुद को ऊपर उठाना है। ये जाने Mm. अनजाने में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के करता है। दिस इज माइंड्स वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, Mm. एंड दिस हैपेंस एट अ वेरी सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। Okay. तो अब ये फैसला आपको करना है, क्योंकि देखो हर रिश्ते का सच खुद को पता होता है। मैं नहीं बता Mm. सकता वो सच। वो सच आपके अलावा किसी और को नहीं पता। वो दो लोगों के बीच का सच होता है, और सारी जिंदगी वो दो लोगों के बीच का सच रहता है। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं सब। बाकी सब लोगों के assumptions हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। एग्जैक्ट सच, द रियल ट्रूथ ओनली यू एंड दैट पर्सन नोज, Yes, sir. राइट? तो बस अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से उस रिलेशनशिप में सच्चे थे, आपने अपनी तरफ से जितना समर्पण करना था या जितना संपूर्ण अपना देना था दे दिया है, अब लगता है कि अब वो रिश्ता नहीं टिक पा रहा है, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और वो सर बार बार वो थॉट्स परेशान करते हैं कि हमने मतलब हमारी वो अटक जाते हैं हम लाइफ में, हम आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं हो पाता है। थॉट्स उस क्या चीज आते हैं? की मतलब हमारी गलती थी क्या, या फिर कुछ ऐसे टाइम याद आते हैं जैसे हमने बात की थी या फिर हम देखिए मिले वो थे। इसलिए है क्योंकि हम कभी भी इस रिश्ते को टूटता हुआ हमने ना देखा है, ना कभी महसूस किया है, ना सोचा है। ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो जो भी चीजें इच्छा के अनुसार होती हैं वो मन को या माइंड को नहीं पसंद आती। उसको हर चीज अपने मुताबिक ही चाहिए। करेक्ट? तो जो चीज करेक्ट। इच्छा अनुसार होगी वहां पे दिमाग अटक जाएगा। सॉरी, जो चीज इच्छा अनुसार नहीं होगी वहां पे दिमाग अटक जाएगा। जो इच्छा अनुसार होगी वहां पे तो दिमाग को कोई टेंशन ही नहीं है। वहां पे हम्म। तो सब चीजें अपने हिसाब से हो रही है। सो जो भी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, जो भी आपके विशेष थी, आई एम श्योर आपकी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ विशेष होंगे उस इंसान के साथ, जब नहीं पूरे हो रहे, या वो रिलेशनशिप आके ऐसी जगह पे अटक गया है जहाँ पे शायद वो टूट सकता है, तो वो इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। तो दिमाग हम्म। कॉन्स्टेंटली वहीं जा रहा है कि मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। ये हर हम्म। इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में होता है। वंस यू अटैच योरसेल्फ टू समबडी, जब हम्म। जिस मोमेंट पे वो डिटैचमेंट होगी, जिस मोमेंट पे वो टूटेगा, या जिस मोमेंट पे बिखरन होगी, देखिए थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी सफरिंग तो होगी होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि दो कागज जब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो थोड़ा से फट जाते हैं एक दूसरे के साथ। वो जो फटना होता है ना, वो उस मोमेंट की, उस लम्हे की पेन होती है। वो पेन से आपको गुजरना पड़ता है, बट देन खुद को समझाना पड़ता है कि या तो मैं इस लम्हे में
अब खुद को धीरे धीरे खर्च और खत्म करता चला जाऊं या करती चली जाऊं, या यहाँ से मैं एक जिंदगी का एक नया सिरा, हो सकता है यहाँ पे कोई सबक था जो मुझे सीखना था, इस रिलेशनशिप के थ्रू मैं उस सबक को सीखूं और अपनी जिंदगी के आगे की जिंदगी में, आगे के रिश्तों में, या आगे जो भी जिंदगी बाकी है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करूं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। बिकॉज देखिए एक बात तो तय है, अगर हम इस तरह से जिंदगी को लेते हैं जो पर्सपेक्टिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो शायद जिंदगी सिंप्लीफाई हो जाती है। वो पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग who is coming into your life is actually coming for a purpose, and the purpose is to teach you something. You are meant to learn something. This is your individual journey. आप ट्रेन के अंदर हैं, आप बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन लेके जा रही है आपको अपनी जिंदगी के डेस्टिनेशन पर। होता क्या है, बीच में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकती है, कुछ लोग चढ़ते हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर, प्लेटफॉर्म पर से चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर, वो आपके हम सफर हम साथी बनते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद जब उनका प्लेटफॉर्म आ जाता है तो वो उतर के अपनी जिंदगी की जर्नी पर निकल जाते हैं। दिस इज हाउ इट्स मेंट टू बी। बट होता क्या है, जैसे ही हमारा किसी के साथ जुड़ाव होता है, जब कोई वो ट्रेन में सफर करता है और हमारा हम साथी बन जाता है, हमें लगता है यही हमारा डेस्टिनेशन है, यही हमारा सब कुछ है। हम अपनी जर्नी को छोड़ के, अपनी जर्नी को भूल के, अपने डेस्टिनेशन को भूल कर उसी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा बहे जाते हैं, बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है, एंड वी फील दैट पर्सन इज एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द ट्रूथ। सो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, डिविनिटी ने, पावर ने, आपके सोल ने बहुत सारे साइंस आपको दिए होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखती भी हैं, जैसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, लेकिन हम शायद देख नहीं पाते क्योंकि इमोशंस का भाव जो है, या इमोशंस का ओवरवेलमिंग इतना ज्यादा होता है कि उसके आगे हमें कुछ दिखता नहीं है। जब लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो एक्चुअली ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये बेकार की बात है। प्यार अंधे होने का सिर्फ अगर कोई मतलब है तो इतना है कि प्यार में जो इमोशंस जागृत होते हैं, वो इमोशंस आपकी आंख पे पट्टी बांध देते हैं, उसके आगे आपको कुछ दिखता नहीं है, आपको कुछ सत्य नहीं दिखता, आपको इमोशंस से, इमोशंस के लेंस से जो देख रहे हो वही दिखता है। तो हमें वो उसको, उस धूल को या उस मिट्टी को अपने चश्मे पर से साफ करना और सामने देखना है क्लियरली कि सच सर क्या है। हाउ टू मैनेज दोज इमोशंस, जैसे हम कभी इमोशंस के बहाव में जैसे वो हो वो जाते तो उसको हाँ, देखिए वो इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं, हमने ना इमोशंस को कभी बैलेंस करना किसी ने सिखाया नहीं, कभी हमने सीखा नहीं। इमोशंस को बैलेंस करने का तरीका, एक जो स्ट्रॉन्ग तरीका है वो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। विल पावर क्या करती है कि अगर मैंने फैसला कर लिया है कि हाइपोथेटिकली मुझे 2 घंटे तक इनसे बात नहीं करनी है, तो इस पे फिर अटल रहना जरूरी होता है, ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इमोशंस क्या धीरे धीरे बैलेंस हो जाते हैं, फिर आपको सब चीजें दिखनी क्लियरली शुरू हो जाती है, समझ में आती है। क्योंकि अभी क्या, जैसे जैसे देखिए बड़ा सिंपल है ना, हम एक ब्रिज पे चल रहे हैं, आसपास बहुत सारी धुंध है, वो धुंध क्या है, इमोशंस है, वो आपको क्लाउड कर रहे हैं आपकी सारी जजमेंट को। हम इमोशंस के बहाव में फट से डिसीजन लेते हैं, फट फट सब चीजें करते हैं, और क्या होता है ना, उसी के बहाव में बह के बिखर चले जाते हैं। इमोशंस को बैलेंस करने का मतलब है इंस्टेंटली कुछ नहीं करना है, रुकते हैं, ठहरते हैं, समझते हैं, थोड़ा ठहराव रखते हैं, डिसीजन लेंगे लेकिन शाम को लेंगे ना, रात को लेंगे, 6 घंटे खुद को देते हैं, 8 घंटे खुद को देते हैं। ऐसे जब आप इस टाइम को एक्सपैंड करते चले जाते हो तो इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं। इमोशंस को हिंदी में कहते हैं क्षण भंगु। क्षण भंगु का मतलब वो क्षण को भंग करते हैं, मतलब उस मोमेंट पे जो चीज आ रही है ना वो इतनी ज्यादा हो जाती है दैट यू वांट टू टेक एन एक्शन एंड रिएक्शन टुवर्ड्स दैट। उस मोमेंट पे कुछ मत करो, उस मोमेंट पे रुक जाओ, उस मोमेंट के लिए थम जाओ, सहम जाओ, उसके बाद अपने आप देखोगे धीरे धीरे वो इमोशन से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। इट्स लाइक इट कम्स लाइक अ वूफ ऑफ एनर्जी, बट इफ यू डू नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, यू जस्ट लेट इट बी। इस समय कुछ नहीं करना, रात को करेंगे तब तक आप देखोगे वो इमोशंस अपने आप ठंडे हो जाते हैं। कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे ही होता है, अचानक से कोई गाना सुनते हो और आंखों में आंसू आ जाते हैं, करेक्ट? या बहुत ज्यादा मन ओवरवेल्म हो जाता है इमोशन से, 5 मिनट 10 मिनट तक शायद वो रहेंगे भी, उसके बाद कुछ और लम्हा आ जाता है, वो टेक ओवर कर लेते हो और फिर सब चीजें भूल जाते हो। एग्जैक्टली अब होता क्या है, हम उन इमोशंस के बवंडर में बह के कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं। इमीडिएटली आंसू आए, हाइपोथेटिकली असम्पशंस में, इमीडिएटली मैसेज चला गया, इमीडिएटली कॉल चला गया, इमीडिएटली सब चीजें हो गई। रुक जाओ, थम जाओ, इसलिए स्थिरता बड़ी जरूरी है। देखो इमोशंस का मतलब ही एनर्जी इन मोशंस, सॉरी एनर्जी इन मोशन। एनर्जी तो है और क्या, गुस्सा भी एनर्जी है, करेक्ट?
हम Yes. क्या करते हैं, वो सारी एनर्जी को सही दिशा देने जरूरी होते हैं। वो जो इमोशंस आपके अंदर से जाग रहे, जो एनर्जी जाग रही है, उसको बस एक सही दिशा देनी है। जब आप सही दिशा दोगे तो स्थिरता आ जाती है। लेकिन अगर वो बिखर जाती है तो सारी एनर्जी फिर वो गुस्से में, टेम्परामेंट में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, सॉरी, डिसअपॉइंटमेंट में, सैडनेस में, ग्रीफ में, डिप्रेशन में, इन सब चीजों में गुजरनी शुरू हो जाती है। उसको, उस एनर्जी को रोको, थमाओ, संभालो और एक सही दिशा दो। Okay, sir. ओके, दिस विल हेल्प। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। ओके, मूविंग ऑन टू रुखसार जी, रुखसार खान। रुखसार जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाथ तो खड़ा Yes किया हुआ sir, है आपने। yes हाँ sir, जी, हाँ yes जी, sir. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Actually जो भी दिव्या मैम का था ना इशू, हम्म, same as for me sir. अरे वाह, चलो सॉर्ट आउट हो गया। Sort out तो almost मुझे लग रहा है कि हाँ हो गया, but तो अच्छी बात है। अभी मेरा first है ना ये session. ओके, वंडरफुल, आई होप दैट हेल्प्स, थैंक यू। जी. हाँ जी, Okay. तराली जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? Very good afternoon. Good I'm afternoon. gradually feeling good. That's nice. Yeah. The thing is that please don't judge me or don't laugh. I just want to know what does it mean finding yourself? देखिए, पहली बात तो हम यहाँ पे कोई जज करते नहीं है किसी को भी, और मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं किया, तो ये बातें खत्म हो जाती है। Please, ये no, प्लेटफॉर्म no, इस because तरीके से people है। say na, I could find myself, I could find myself. हाँ, So देखिए, this is फाइंडिंग very, योरसेल्फ, खुद को जानना, खुद को समझना अपने आप में एक जर्नी होती है। ये बहुत सुना भी होगा। इनफैक्ट आई आल्सो कीप सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं, yeah, क्योंकि मैं खुद के साथ भी ये करता हूँ। ये जीवन की यात्रा है जिसमें हम खुद को समझते हैं, कुछ को ढूंढते हैं। होता क्या है, हम हमेशा, जैसे ही हम बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, हम हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। बच्चा okay, डिपेंडेंट होता है माँ बाप पे, करेक्ट। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं, फिर स्कूल आ जाता है, फिर कॉलेज आ जाता है, हम हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में जिंदगी बिताते हैं। डिपेंडेंसी में जब जिंदगी बिताते हैं तो होता क्या है, जब कोई हमेशा मेरे साथ है तो वही मुझे बताता है कि मैं कौन। okay, ऐसे ही होता है ना, मम्मी कहती हैं ये मत करो, तुम ऐसे नहीं हो, देखो शांत बैठे हो, तुम अच्छे बच्चे हो, देखो तुम दरवाजा पे खटखटाते रहते हो, तुम बुरे बच्चे हो। बचपन से ऐसा होता रहता है। स्कूल में टीचर कुछ कहती है, कॉलेज में कोई कुछ कहता है, हर कोई आपको आपके बारे में बताता है, राइट। okay, यहाँ मतलब okay, सिर्फ इतना है कि जब हर कोई आपको आपके बारे में कैसे बता सकता है, आपको अपने बारे में जानना चाहिए ना, आप एक्चुअली में कैसे हो। होता क्या है, जब कोई हमारे बारे में हमें बताता है, हमें लगता है सच बोल रहा है क्योंकि हमारे आसपास के लोग हैं। वो सच okay, क्या बोल रहे हैं, वो तो अपने परसीव्ड इमेज से बोल रहे हैं जो आपके बारे में उन्होंने बना रखी है। आप सभी yes, ने एक yes, परसीव्ड इमेज बना रखी होगी मेरे बारे में, करेक्ट, कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं। मैं वैसा या ऐसा हूं या नहीं हूं, ये आपको क्या पता। okay, ये तो मुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ। यहाँ 1 घंटे का सेशन होता है, 1.5 घंटे, 2 घंटे का सेशन होता है, दिन के 22 घंटे में कैसा हूँ आपको क्या पता। सिर्फ 5 मिनट के वीडियो जो सुबह, ये 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो 1 मिनट में लोग बोर हो जाते हैं। 1 मिनट का वीडियो जो सुबह आता है, या फिर 1 घंटे का सेशन या 1.5 घंटे का सेशन जो हफ्ते में 2 या 3 दिन होता है, उसके बेसिस पे आपको क्या पता मैं कौन। हो yeah, सकता है मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। हो सकता है सारी इमेजेस जो आ रही हैं आपके सामने, जो भी पर्सोना आपके सामने आ रहा है, वो प्रोजेक्टेड इमेज हो। इसके पीछे क्या है आपको नहीं पता। तो ये जो पीछे है ना, यही असलियत है, यही अस्तित्व है, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, दूसरा हमें बताता रहता है, तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि हम ऐसे हैं। okay, अब खुद से जानना जरूरी है कि मैं वाकई में ऐसा हूं या नहीं हूं। जैसे हाइपोथेटिकली अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तो लोग कह सकते हैं कि बड़ा बोरिंग इंसान है, सारा दिन किताब पढ़ता रहता है, करेक्ट। correct, लेकिन ये सत्य है या नहीं है, ये किसको पता। ये तो मेरे को जानना है ना कि वाकई में क्या मैं बोरिंग हूँ, या मैं इंटरेस्टिंग हूँ, या मुझे किताब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि मेरे चेहरे पे महक आ जाती है। ये okay. सत्य कौन जानेगा, ये सत्य मुझे खुद से जानना पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीवन। इसीलिए फाइंडिंग योरसेल्फ इज How इम्पोर्टेंट। how to देखो, वो हाउ टू कैसे होता है, हाउ टू खुद के साथ समय बिता के, खुद को हर चीज में ऑब्जर्व करके, खुद समझ के, उन सब जो समझते हो उसको इम्प्लीमेंट करके, ये थोड़ा जर्नी बड़ा
लंबा जर्नी है और थोड़ा टीडियस जर्नी है, बट खुद को, क्योंकि डिपेंडेंसी हटानी पड़ती है सारी, सबसे पहले तो, Definitely. कि मतलब मुझे मम्मी से कुछ नहीं चाहिए, पापा से कुछ नहीं चाहिए, भाई से कुछ नहीं चाहिए, किसी से मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी प्रकार की। जब डिपेंडेंसी हटती है तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट होता है ना, तब खुद के साथ समय बिताते हो तो समझ में आता है कि यहाँ से वहां कैसे जाना है। अच्छा नहीं पता कैसे जाना है तो गूगल ढूंढो, गूगल से नहीं ढूंढ सकते तो नीचे जाके रोड पे किसी से पूछो। अगर मुझे यहाँ से चरनी रोड तक जाना है, एक रास्ता तो है कि मुझे कोई ना कोई बताता रहे, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा बेटा यहाँ से राइट ले लेना, फिर वहां से लेफ्ट ले लेना, फिर आगे चले जाना। अब मैं कह रहा हूँ मम्मी पापा नहीं है, स्टार्ट फाइंडिंग, फाइंड द वे। हाउ विल यू फाइंड द वे? कुछ ना कुछ कोशिश करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल मैप्स पे जाओगे, नीचे रोड पे किसी से पूछोगे, रास्ते में कोई मिल जाएगा उससे पूछोगे। ये जो जर्नी जो आप ट्रेवर्स करोगे ना, दिस जर्नी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हु यू एक्चुअली आर, विच इज द रियल ट्रूथ। एंड वंस यू स्टार्ट बीइंग हु यू आर, एंड वंस दैट कम्स इन फ्रंट, तो बाकी सारी चीजें ढल जाती है, तो बाकी सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपको कुछ प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अदरवाइज क्या होता है, हम होते कुछ और है, हम प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं लोगों के सामने, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक इमेज बना रखी है सबने कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं, और अंदर से कुछ और है। जब ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, वन हो जाते हैं, तो सारा का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये दो है तो मैं क्या करूंगा, सत्य ये है, झूठ ये है, मैं हमेशा इस झूठ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। Okay. हम यही तो करते हैं, झूठ को तो प्रोटेक्ट करते हैं, सच को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती ना, झूठ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। झूठ के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है। तो Yes. जब हम झूठ बोलते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अच्छा मैंने 25 फरवरी को शाम को 6 बजे उससे मुलाकात हुई, उसको ये बोला था कि मैं वहां पर हूं, लेकिन एक्चुअली मैं कहीं और था, तो गड़बड़ हो जाती है ना, याद Yes. रखनी पड़ती है सारी चीजें, Yes. फिर उसमें झोल हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सच अगर सच है तो सच है ना, कि मैं 25 फरवरी को शाम को 6 बजे यहाँ पे था, किसी को पसंद है या नहीं पसंद, मैं यहाँ पे था, खत्म हो गई बात। Yeah, yeah. जिसको Obviously. पसंद है वो रहेगा, जिसको नहीं पसंद वो चला जाएगा, और जो Okay. रहेगा भी वो सारी जिंदगी के लिए तो वैसे भी नहीं रहेगा। परमानेंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं हूँ I और आप know. भी नहीं हो, कब तक है I ये पता know. नहीं। तो I इतना ही know. सिंपल है। तो फाइंडिंग योरसेल्फ का मतलब यह है कि आप डिपेंडेंसी हटा के स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट। हम क्या है, Okay. जितना मैं देखता हूँ, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं बहुत सारे लोग, आई कीप सीइंग दैट, बट हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट भी होना जरूरी है। Okay. ये है मतलब, Okay. तो ट्राई Got कीजिए। it. ओके, Got it. Thank थैंक यू, you. Thank you थैंक यू very सो much. मच। ओके, सपना सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। बोलिए हेलो। बोलिए। हेलो, हाँ हाँ जी सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, थैंक यू पहले तो कि मैं अपने मन का सवाल आपसे पूछ पा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये दिमाग में चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किससे पूछूं, लेकिन आपसे पूछ पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सर सवाल है कि क्या वाकई में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं? ओहो, मुश्किल सवाल है इसका, कैसे अब एक सेंटेंस में जवाब दिया जाए। सर, बहुत लंबी। एक्चुअली डीपेस्ट लेयर में तो बच्चे ऐसा होता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, इन द सेंस, अगर सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो आप सपोज रानी है और एक शतरंज है, करेक्ट? मतलब आप अगर एक रानी है और एक शतरंज है, तो आइडियली ऐसा होता है, जीवन इस तरह से चलता है कि अब वो कौन है कैसे चलता है पता नहीं, बट वो आपको चलाया जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई है, एक समझो एक हाथ है जो उस रानी को, जैसे हम चेस खेलते हैं ना तो हमारा हाथ होता है, तो वो कोई उस रानी को या उस जो भी आप प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको आगे बढ़ाता रहता है और उसके रास्ते बनाता रहता है। ये है सत्य। लेकिन अच्छा, अब एक्चुअली ना बहुत डीपेस्ट लेयर्स हैं इसके अंदर, तो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। आइडियली चलो एक लेयर बता देता हूँ, जाना थोड़ा सा डीप समझना। आइडियली ऐसा होता है, ये जो हाथ है ना जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हाथ को हम ईश्वर कह सकते हैं, डिवाइन पावर कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, बीइंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप वो रानी
है जो चेस्ट है और आपको चलाया जा रहा है, आपको कहीं पहुंचाना है तो आपको पहुंचाया जा रहा है, आप सिर्फ एक मीडियम हो इस लाइफ के अंदर। अब ये जिसको भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, अब पता नहीं कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है, या सब अलग अलग लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर या थोड़ा सा शास्त्रों के अंदर कहा गया है या थोड़ा सा समझा है, ये एक्चुअली हाथ आपका ही है, ये आपके हायर सेल्फ का है। अगर हम एक हायर सेल्फ समझते हैं, मतलब आपकी स्पिरिट कह लो, आपकी सोल कह लो, या फिर आपके जन्म से पहले, अगर हम पुनर्जन्म और इन सब चीजों को मानते हैं, जन्म से पहले सोल्स जो होती है ना, वो डिसीजन लेती हैं कि इस तरह के जर्नी से गुजरना है आपको फिजिकल फॉर्म में ऑन दिस अर्थ, so that you can learn certain things in your life and so that you can transcend to a new space। ऐसा होता है। तो आइडली हाथ भी आपके हायर सेल्फ का ही है, आप ही हैं, लेकिन आपका थोड़ा जागृत सेल्फ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बहुत ज्यादा, जब हम जीवन जीते हैं तो बहुत सारी उलझनों में अटक जाते हैं, परिवार है, इमोशंस है, पैसा है, फाइनेंस है, काम है, करियर है, बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। तो समझ लीजिए कोई है जो आपको चला रहा है, लेकिन ये चल आप तब पाते हो जब आप कंप्लीट संपूर्ण समर्पण करते हो, मतलब अपने अस्तित्व को छोड़कर आप यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिलती है उसके थ्रू चलते हो, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो टू सिंप्लीफाई योर आंसर कि कुछ बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है या नहीं है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि आउटर सर्कल में जो चीजें हो रही हैं जो लॉन्ग टर्म की हैं वो शायद आपके हाथ में नहीं होंगी, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हो रही हैं, जो फ्री विल है, जो चॉइसेस है, मतलब हाइपोथेटिकली कि आपको यहाँ से गुजरात पहुंचना है, करेक्ट, तो ये शायद आपका तय हो सकता है कि आपको गुजरात पहुंचना है, लेकिन आप कैसे पहुंचोगे ये रास्ते आप स्वयं चुनते हो। कुछ लोग हैं जो सीधा रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग हैं जो इधर उधर 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 घूम के गुजरात पहुंचते हैं। जैसे आप पहुंचना चाहते हो पहुंच आप सकते हो। कुछ लोग जो सीधा रास्ता चुनते हैं, शायद उनका समय कम लगता हो लेकिन एक्सपीरियंसेस कम हो, करेक्ट। लेकिन जो लोग लंबा रास्ता कभी कभी चुन लेते हैं, हो सकता है तजुर्बे वहां पे थोड़े ज्यादा हो लेकिन समय भी थोड़ा ज्यादा लगे। तो ये इस तरह से आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। सर मेरे मन में ये क्वेश्चन क्यों आया, मैं थोड़ा सा वो करूंगी। बोलिए। मतलब जैसे जो जो आपने कहा कि चॉइसेस हैं, वहां तो आसान होता है, मतलब जहां हमें पता है कि मुझे ये करना है तो हाँ मैं ये चूज कर लूंगी, ये सही रहेगा वो रहेगा। लेकिन जैसे हम जिंदगी में चल रहे होते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, हमने कभी सोची नहीं थी और सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर उसके लिए लगता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम से परेशान है कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ये कैसे सॉल्व होगी। तब ये दिमाग में आता है कि शायद कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। फिर दूसरे क्षण दिमाग में आता है कि नहीं, इस दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, शायद हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उसके सॉल्यूशन तक। तो क्या है सर, वाकई में वो चीजें हाथ में नहीं है या फिर हम देखिए पहुंच नहीं? सिंपल कर देते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। देखिए बहुत सारी चीजें अपने आप होती रहती हैं जिंदगी के अंदर। मतलब कोविड किसी को पता नहीं था, अचानक से आ गया। जो चीज आपकी इच्छा अनुसार ना हो उसे तो एम्ब्रेस करना ही करना है। होता क्या, हम फंस कहाँ जाते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार चीजें होती है उसमें तो खुश रहते हैं कि ये हम कर सकते हैं, ये हम कर पा रहे हैं, ये हमारी क्षमता के हिसाब से। लेकिन जो इच्छा अनुसार नहीं हो रही है, अकॉर्डिंग टू योर विल एंड डिजायर्स एंड विशेस, इफ इट समथिंग इज नॉट हैपनिंग, लाइक कोविड डिड नॉट हैपन विद द विल एंड डिजायर्स एंड विशेस ऑफ एवरीवन, बट आपको उसे एम्ब्रेस तो करना ही, आपको एक्सेप्ट तो करना ही करना है। आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहां से कुछ रास्ते खुलते हैं। पर होता क्या है, प्रॉब्लम रेजिस्टेंस के अंदर है। हम रेजिस्ट करते रहते हैं, हमें वही चाहिए जो हमें चाहिए। जो चीज कुछ अलग से बॉल आ रही है तो हो सकता है वहां से कोई नया रास्ता खुलना हो जीवन का। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तभी तो वो रास्ता खुलेगा। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक दरवाजा बंद करके रखोगे तो कैसे रास्ता खुलेंगे। जीवन का सिर्फ एक शब्द में अगर कुछ कहा जाए, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू एम्ब्रेसिंग और एक्सेप्टिंग। The more you accept life, the more doors will open. The more doors will open, the more you'll be able to connect to this universe, the more you'll be able to achieve what you want to achieve. बहुत सारे लोग जब आप देखते होगे अचीव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। वो जो आता है लेते हैं और उसको बेहतरीन बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ये नहीं सोचा था। अरे आपने सोचा था या नहीं सोचा था, आपकी सोच तो, थॉट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग हैं। आपके अकेले के थॉट्स की क्या वैल्यू है, सोचो जरा।
क्या आप इस ब्रह्मांड को चलाते हो? आपके मृत्यु के बाद भी ये ब्रह्मांड यहीं पर रहेगा। करेक्ट? आपके जीवन से पहले भी ब्रह्मांड था, आपके जीवन के बाद भी ब्रह्मांड रहेगा। सो यू आर नॉट गोइंग टू रन दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स रन्स ऑन इटसेल्फ। yes there's some cause and effect, what you sow is what you will reap, that basically means आप कोई एक्शन लोगे तो उसका एक रिस्पॉन्स और एक रिएक्शन होगा। आप कोई कर्म करोगे तो उसका कुछ रिस्पॉन्स और रिएक्शन होगा, तो कोई रिजल्ट होगा। होता क्या है, जो इच्छा अनुसार नहीं होती हम उसके थॉट्स में अटक जाते हैं। अब जब थॉट में अटक गए, एंटैंगल्ड हो गए, तो कोई एक्शन नहीं है ना। थॉट, हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, थॉट जो होता है ना, एक्शन से पहले का होता है। मतलब यहाँ पे आने से पहले हो सकता है कोई थॉट हो, जो जब कोई कोई नया सेशन करता है तो कुछ बहुत सारी चीजें सोच के आता होगा कि पता नहीं मैं ये पूछूंगा, सर क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लोग जज तो नहीं करेंगे, सारे थॉट्स होते हैं। करेक्ट? लेकिन जब यहाँ पर आ जाते हो और हम बात करते हैं तो सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं ना उससे रिलेटेड। तो थॉट इज ऑलवेज प्री एक्शन, एक्शन से पहले होते हैं थॉट। जब एक्शन कर रहे हो तो तब थॉट्स नहीं आते, तब आपका बीइंग होता है, या आपकी सोल होती है, आपकी गाइडेंस होती है, आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपकी बॉडी होती है, वो सब टेक ओवर कर लेता है। जैसे एग्जाम में अचानक से सब बहुत कुछ सोच लिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब एग्जाम दे रहे होते तो सब चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। अगर एग्जाम अच्छे से आता होगा तो अपने आप सब चीजें, पेन अपने आप फ्लो करता है, फिर बार बार सोचते नहीं रहते कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। इट जस्ट कीप्स फ्लोइंग थ्रू योर बीइंग। समझे? तो थॉट इज ओनली प्री एक्शन। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जो चीज इच्छा अनुसार नहीं हो रही उसे एम्ब्रेस करो, और उसके इर्द गिर्द या उसके सहमति में जो जो एक्शन लेना है वो एक्शन लो और आगे बढ़ो। हम सोचते बहुत ज्यादा है और करते बहुत कम है। एक्सेप्ट करोगे तो कुछ कर भी पाओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो रेजिस्ट करोगे, रेजिस्ट करोगे तो थॉट अटकते रहेंगे। माइंड क्यों एंटैंगल्ड होता है? माइंड सिर्फ, माइंड के जितने भी थॉट्स हैं ना वो एंटैंगल्ड उसी चीज में होता है जो हमारी नहीं हुई, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही। करेक्ट? आपने चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, सामने चॉकलेट पेस्ट्री आ गई, तो कोई प्रॉब्लम है? आपने चॉकलेट पेस्ट्री मांगी और आपके सामने पाइनएप्पल आ गई, तो प्रॉब्लम है। पाइनएप्पल तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये व्हाइट क्रीम तो मैं खा ही नहीं सकती, इससे मुझे एलर्जी है। करेक्ट? मैं कह रहा हूं आने दो, खाओ, देखो कुछ होता भी है कि नहीं होता, या सिर्फ दिमाग की कहानियां है सिर्फ कि मुझे चॉकलेट ही पसंद है क्योंकि बचपन से मैं चॉकलेट ही खाते आ रही हूँ, क्योंकि सबने मुझे कहा है मेरी फेवरेट चॉकलेट है। हो सकता है पाइनएप्पल का टेस्ट उस समय बचपन में अच्छा ना लगा, लेकिन आज अच्छा लग जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? चीजें बदलती हैं, सोच बदलती हैं, डिजायर्स बदलती हैं, ड्रीम्स बदलते हैं, विशेस बदलती हैं। क्या एक चीज हमेशा टिकी रहती है? आज से 20 साल पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो वो समय का ड्रीम था। उसके बाद अचानक से सोचा एक्टर बन जाते हैं, वो समय का ड्रीम था। आज कुछ और है। तो चीजें बदल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में सोच लिया था क्रिकेटर बनना तो अगले 70 साल तक बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है चीजें बदल जाती हैं जीवन में। चीजें बदलेंगी जैसे जैसे विशेष आएंगे, डिजायर्स आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, अचीवमेंट्स आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, एनवायरमेंट आएगा, चीजें बदलती हैं। आज से 5 साल पहले किसी को पता नहीं था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है। करेक्ट? करेक्ट? इंस्टाग्राम एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था ना, बट अब हो गया है ना। तो पीपल आर लुकिंग इट एज अ करियर ऑप्शन टू अर्न मनी एंड द सर्वाइवल, राइट? सो चीजें बदल रही हैं जैसे एनवायरनमेंट बदलता है। देखो सब चीजें एनवायरनमेंट के जरिए हैं। जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा वैसे डिजायर्स भी बदलेंगी। पहले डिजायर होगी आईएएस ऑफिसर बनने की, या आईसीएस या आईपीएस XYZ। कुछ सालों के बाद डिजायर बदल जाती है कि नहीं यार ये नहीं करना, इसमें मजा नहीं आ रहा, ये कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर खर्च और खत्म कर रहा है। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग एल्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस लम्हे का सच था, ये इस लम्हे का सच है। ट्राई इट, हु इज स्टॉपिंग यू? द प्रॉब्लम इज हम अटक जाते हैं वहीं पर कि यही चाहिए तो यही चाहिए, बस अटकना नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? कुछ और अच्छा लिखा होगा, कुछ और सही रास्ता बनेगा। बोलो। मीन्स सर फाइनल ये है कि अगर बहुत टाइम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आगे क्या है ये हमें नहीं पता, शायद कुछ अच्छा ही होना हो, तो फिर उसे छोड़ देते हैं, जो हो रहा है उसके साथ चले चलते हैं, यही ना? एब्सोल्युटली राइट। फ्लो, फ्लो, इसे फ्लो कहते हैं। पानी अगर आपको देखो मुश्किल होता ना, पानी का जो करंट होता है, वाटर के करंट के अगेंस्ट जाना। आपने एक बारी कोशिश की, 2 बारी कोशिश की, अगर पानी बार बार आपको पीछे फेंक रहा है तो रुक जाओ ना, तो फ्लो करो, फ्लोट करो, देखो कहाँ लेके जाता है। हो सकता है कोई ऐसी जगह पे लेके जाए जिसका सिरा पिछली किसी कड़ी से जुड़ जाए, आपको क्या पता।
ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो पता कब होता है? When you trust yourself। जब खुद में विश्वास नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा डरते हैं कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, पता नहीं हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब खुद पे विश्वास हो तो ऐसा होता है कि आगे के आगे देखेंगे, कर लेंगे जो करना है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। करेक्ट। जब हम डरते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं चीजों को, जब हम डरते नहीं है तो हम कंट्रोल नहीं करते। जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना, इसका मतलब डरते हैं बहुत ज्यादा। जो माँ बाप डरते नहीं है ना, वो बच्चों को खुला छोड़ते हैं, जाओ कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, परेशानी होगी तो मैं हल कर दूंगा, डोंट वरी, बस मुझे आके बता देना। करेक्ट। इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, मूविंग ऑन टू पारुल पनप्रिया सिंह जी। अच्छा पारुल जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। देन वी कम टू गोपी जी। हाँ जी पारुल, डॉटर ऑफ फौजी, बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बढ़िया सर। सर अभी बोलो जी। आपने एक बात बोली इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की। अब फाइनेंशियली तो नो डाउट आज के डेट में हर कोई इंडिपेंडेंट है। आपने एक बार सेशन में बोला था कि जब मैंने शेरशाह मूवी देखी थी तो आपने ये चीज बोली थी कि जब आपको पता है वो चीज देखने से आपको हर्ट होगा, वो इमोशंस फिर से फील होंगे, तो उसको आप ना देखो, आप जाते हो उस लूप होल को खोलते हो और उस पेन को फील करते हो। सही बात ठीक है, एक सेकेंड आ जाओ। तो उसमें सर अभी क्या हुआ कि मतलब मैं अगर फादर की बात करूं, वो 20 साल पहले शहीद हुए। ठीक है, अब अभी 20 साल के बाद मेरे फूफा जी वो MWO एयरफोर्स में थे। ठीक है, अभी गोपी मैम को मैंने वो मैसेज कन्वे किया था, कमांड हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और मल्टीपल ऑर्गन्स उनके अफेक्ट हुए थे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से। तो जब मैं वहां पे पहुंची, ठीक है, वो सारी चीजें मेरे आंखों के सामने हो रही है। पहुंचने की कुछ देर के बाद ही उनकी हार्ट बीट रुक गई। अब सर वहां पे क्या हुआ कि उस चीज को मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सर जो वो सिचुएशन आई ना, जो ऑनरिंग देते हैं एंड ऑल, वो 20 साल पहले वाली सारी चीजें ना फ्लैशबैक होने लगी। मैं वहां पे उनका सपोर्ट सिस्टम बनी, क्योंकि मैं उस पेन को फील कर चुकी हूँ कि एक फादर का ना होना एंड देन ऑल, वो सारी चीजें मैंने वहां पे सपोर्ट तो किया, बट सर डीप इनसाइड ना वो पेन जो है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ एक चीजें और चल रही थी सर, आपसे क्या छुपाना कि आई एम इन रिलेशनशिप, 4.5 साल का रिलेशन, जिसमें मतलब कभी भी कुछ भी कोई अब्यूजिव नहीं, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज। एंड अभी भी मतलब 4 मार्च को उस इंसान की शादी हो रही है एंड ही मूव्ड ऑन, और ही सेड कि आपको कभी भी जरूरत होगी, कुछ भी होगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट सर मुझे ना वो चीज नहीं समझ में आती कि ये जो प्रोमिसेस होते हैं, ये झूठे वादे होते हैं, मतलब दोनों चीजें चल रही है, मुझे सर लिटरली नहीं समझ में आ रहा है। और वो चीजें ना सर मुझे मेरी चीजों से 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन से डेली जर्नलिंग जो करती हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ सर, बट वो डीप इनसाइड ना वो मुझे अफेक्ट कर रहा है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ उन सब चीजों से, वो सारी चीजें फ्लैशबैक। हम पहली बात पे जाएं कि दूसरी बात पे जाएं? पहले आपकी पहली कौन बात सी बात? पे, पहली बात पे जाते हैं। देखिए जो 20 साल फादर वाली बात, देखिए वो रिलीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखिए उसका एक सिरा तो डीप रहेगा आपके अंदर, क्योंकि बहुत क्लोज निटेड रिलेशनशिप होता है एक फादर एंड डॉटर का। करेक्ट। एक सिरा तो रह जाएगा, जैसे मेरे डैड की मृत्यु है तो मुझे मालूम है, लेकिन वो सिरा बहुत छोटा सा ही होता है। वो ऐसा नहीं होता कि इतना हम उसको बार बार, देखो जितना हम उसको खुरेदते हैं उतना बाहर आ सकता है, बड़ा सिंपल सी बात है। वो जख्म तो ऐसा है जितना हम खुरेदेंगे वो बाहर आता जाएगा। मैं चाहूँ तो 24 घंटे अपने डैड को याद कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ, देखो जब मैं याद करूंगा तभी तो वो पेन आएगा, जब मैं याद नहीं करूंगा तो पेन नहीं आएगा ना। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई पेन नहीं है ना, लेकिन यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद मेरे डैड की फोटो सामने पड़ी हुई है मंदिर में, अगर मैं चाहता हूँ और उसको सामने देखता हूँ और उसी को देखता रहता हूँ, या उनको जो गाने पसंद थे, उनको जो खाना पसंद था, या कौन सी जगह पे उनको पसंद था, उसके बारे में सोचता रहूंगा, तो आई एम ओपनिंग द लेयर्स और मैं उसके अंदर डुबकी मार के फिर इस पेन को बाहर निकाल रहा हूँ। करेक्ट। वो अपने आप अचानक से आ जाए तो बात अलग है कि हाइपोथेटिकली मैं यहाँ से शिमला गया
अपने काम के लिए, अपनी किसी शूट के लिए, वहां पे किसी जगह पे मुझे कोई मोमेंट याद आ गया जहाँ पे मैंने अपने डैड के साथ बिताया था, तो वो आ गया, उसको फील कर लिया, उसको महसूस कर लिया। हो सकता है वहां पे 5 मिनट के लिए रो भी लिया या आधे घंटे के लिए रो लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये ओके है। द प्रॉब्लम इज अनलेस एंड अनटिल हम उसको बार बार डीपली जाएं और उस लूप होल को बाहर निकालें तो प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज अपने आप आ जाती है, जैसे आपने ऑनरिंग देखी और ऑनरिंग आपको आपके डैड की याद दिलाई, करेक्ट, तो वो उस मोमेंट के लिए ओके, उस मोमेंट का सत्य हो सकता है कि उस मोमेंट में आप अपनी जिंदगी में वापस चले गए, आपने उसे महसूस किया, लेकिन फिर उसके बाद खत्म हो गया मोमेंट। उसके बाद अगर हम घर जाके भी फिर बार बार 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अगले दिन, उससे अगले दिन तक वही मोमेंट याद करें, तो हम पास्ट को खरीद रहे हैं। तो उस मोमेंट के लिए ओके है, विच इज ओके। इफ यू आर फीलिंग समथिंग, लेट इट बी, लेट इट पास थ्रू यू, क्योंकि वो फील कर करके अपने आप निकल जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप उसको बार बार खुद को याद दिलाओ, तो खुद को डेलिबरेटली, मतलब उस जख्म को खुद नहीं खरीदना है, उसको अपने आप धीरे 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 हील होने देना विद टाइम। दूसरी बात, अब जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, 4.5 साल का रिलेशनशिप था, अब शादी उनकी किसी और जगह हो रही है, तो आई एम श्योर कि फैमिलीज शायद एग्री नहीं कर रही होंगी या कुछ आपस की। फैमिली अग्री थी। आपसे भी मैंने इससे पहले एक बार डिस्कस किया था। तो Okay. आपने ये चीज बोला था कि दोनों चीजें बेटा ये आपके ऊपर है। एक स्वधर्म होता है, देन आपको लगता है कि अगर उस इंसान के साथ रहते हुए आप स्वधर्म को पूरा कर सकते हो तो देन गो है, या तो फिर एक टाइम ब्रेक लो। वो सर 6 महीने का मैंने टाइम मांगा, उस 6 महीने में उनकी फैमिली वालों ने लड़की देखी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था कि करना है, लेकिन वो बिना बताए वो दूसरी लड़की लोग देखने लगे जब मैंने 6 महीने का टाइम मांगा। सर कोई इंसान अगर मेरे लिए 6 महीने का, प्यार का मतलब तो यही होता है ना कि आप जब भी आओ आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, लेकिन वहां पे वो चीज नहीं हुआ। फिर जब शादी तय हुई, मैंने उनकी मदर से बात की, तो उनके मदर का कहना यह है कि आपकी वजह से उन दो रिलेशन के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू एंड मयंक आर ब्रदर एंड सिस्टर। सर वो मेरे लिए कितना बड़ा धब्बा था कि मतलब सब कुछ जानते हुए आप कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो। सर उस दिन का दिन है, मैंने पलट के देखा नहीं। सर मैं स्ट्रांग भी हूँ, हर चीज है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा आगे मे बी और बेटरमेंट के लिए, लेकिन सर वो चीज ना हर्ट कर रही है कि सब कुछ जानते हुए कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, हर चीज है, लेकिन फिर भी आप दूसरी लड़की देख रहे हो और मुझे उस लड़के का बहन बना दिया आपने। देखिए वो ये जो स्टेटमेंट है, ये तो अब दिमाग का खेल है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बोलना होगा, तो शायद उन्होंने बोल दिया होगा। अब किस सिलसिले में बोला ये तो वो जानती है, आप उस मुझे लगता है उस स्टेटमेंट पे ना अटके। दूसरी बात, देखो ये डिसीजन जो शादी का होता है या मैरिज का होता है या निकाह का होता है या कुछ भी होता है, ये डिसीजन दो लोगों का होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, दोज टू पीपल हु विल स्पेंड देयर लाइव्स। आइडियली द बॉय हैज टू बी द वन हु holds the responsibility of the same, कि अगर आपने 6 महीने का टाइम मांगा था तो आइडियली रुकना उनको चाहिए था। पेरेंट्स, मुझे नहीं पता किस तरह के परिवार और में वो हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना प्रेशराइजिंग हो जाता पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली ऑन अ मैन, कि वो इतने घुटने टेक दें और अपने आप ही हर चीज को होने दें। अगर वो चाहेंगे तो रोक सकते हैं, मुझे लगता है अगर रोक सकते थे या रोकना चाहें तो ये डिसीजन उनका है ना। क्योंकि शादी का डिसीजन मैं हर किसी को कहता हूँ बहुत। रुखसार जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू। हाँ, शादी का जो डिसीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दो लोगों के बीच का डिसीजन होता है। ये वो दो लोग ही तय करने चाहिए कि उनको किसके साथ शादी करनी है, आपस में करनी है या नहीं करनी है। ये डिसीजन उस इंसान का ही था। अब आप उनसे पूछें कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई बात बनते नहीं कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इवन आफ्टर मैरिज। कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। इससे तो ये है कि आप अपने जीवन में अटक जाओगे। वो तो अपनी शादी के अंदर है, अब उनको अपनी शादी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी पड़ेगी, जो भी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आप हमेशा अलग रहोगे, आप हमेशा इंतजार ही करते रहोगे हाइपोथेटिकली दिमाग के अंदर कि कब शायद इनके बीच शायद चीजें ठीक हो या ना हो, और कब ये मेरे पास आ जाए। क्योंकि दिमाग और दिल तो हमेशा वही चाहेगा कि कैसे सामने वाले को अपना लिया जाए, वो मेरा हिस्सा कब बनेगा। तो इसमें तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है। मुझे लगता है या तो आप उनसे
से बात करें या फिर आगे बढ़े जीवन के अंदर, छोड़ें इस रिलेशनशिप सर को? मैंने बात कर ली और मैंने छोड़ भी दिया, एंड थैंक्स टू यू कि अगर शायद आपका सेशन आपके वीडियोस में नहीं देखती तो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल होता। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा बहुत पेन होगा, बट आई नो कि मैं बैक टू ट्रैक हो जाऊंगी और मुझे पता है। और वो चीज पे मैं भी मूव ऑन कि मेरा अब कोई कांटेक्ट नहीं है। आई ब्लॉक्ड हिम, मतलब फैमिली मेंबर से लेकर हर किसी को मैंने ब्लॉक कर दिया और ना ही कांटेक्ट में रहना। मुझे वहां पे स्टक नहीं होना है सर। जब वो इंसान लाइफ में मूव ऑन कर चुका है तो मुझे भी आगे लाइफ में मूव ऑन करना है। मुझे भी लाइफ में कुछ अचीव करना है। वो उसकी कॉल थी, मैंने टाइम मांगा, अगर आपने मुझे वो टाइम नहीं दिया तो आई एम सो सॉरी। ये तो खैर ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। टाइम मांगा मतलब, देखो समझो जरा इस बात को भी, इसकी भी क्लियर में जाते हैं। आपकी जिंदगी का समय आप किसी और से क्यों मांगोगे? ये आपकी जिंदगी है, इसमें मांगना क्या है? क्या हाथ फैला रहे हो किसी और के आगे कि मैंने अपनी जिंदगी के 6 महीने किसी और से मांगे? ये आपकी जिंदगी है बच्चे, आपकी जिंदगी है ना। आप क्यों भिखारी बन रहे हो? आप क्यों मांग रहे हो? हाथ क्यों फैला रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें मांगना ही क्या है? ये आपका हक है, आपने ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है? अग्री सर। अब आप कह रहे हो आपने अपना हक ले लिया तो सामने वाले को उससे परेशानी हो रही है, सामने वाले ने किसी और को चुन लिया। अरे चुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जिंदगी में बच गए। फिर तो आप अपना हक भी नहीं ले सकते एक रिश्ते के अंदर, तो फिर बातें खत्म हो गई ना। आपका जीवन बच्चे, इस पे सबसे ज्यादा हक आपका है, उसके बाद आपके माँ बाप का है जिन्होंने आपको पैदा किया फिजिकली। एग्जैक्टली करेक्ट। मांगना क्या है इसमें कि मैंने 3 महीने मांगे, मैंने 6 महीने मांगे? मांगना क्या होता है? ये तो आपका जीवन है, इसकी हर सांस पे सिर्फ किसी का हक है तो आपका है। उसके बाद आपकी मॉम का है जिन्होंने अपने वूम्ब में रखा, और उसके बाद आपके डैड का है जिनसे आप जागृत हुए। उसके अलावा किसी और का हक नहीं है फिजिकली। जब फिजिकली इनका हक है तो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली सबसे ऊपर आपका हक है। आपकी सांसों पर आपका हक है। आप कौन हो तो किसी से मांग रहे हो? अब आप कह रहे हो कि मैंने मांगा, उसने नहीं दिया, या उसने दे दिया और उसके बाद वो कहीं और चला गया। आप सोचो जरा क्या कह रहे हो। यस सर। सच को देखो। यस सर। तो फिर जाने दो। मुश्किल होगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, आसान तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चे फिर ये भी तो देखो ना कि जीवन किस तरफ जा रहा था। फिर शायद जीवन कुछ और कहना चाह रहा है, शायद आपको कोई और रास्ता है। क्योंकि आप अपना हक ले रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि सामने वाला ना रुका, ना इंतजार किया, ना देखा, ना कुछ भी किया, और ऊपर से आपके ऊपर कुछ चीजें थोप दी बेकार की, जिसका कोई महत्व नहीं है। जो स्टेटमेंट आप कह रहे हो मुझे, ये तो माइंड का एक गेम है कि कुछ नहीं होता तो ये गेम, जैसे हम बचपन में स्कूल में करते थे ना, ये वो वाला सिस्टम है कि ओके चलो इसको राखी बांध दो। सर बट हमें आप नहीं समझ समझे? में आता ये कि वो वाला हमें स्टेटमेंट है बच्चे, और कुछ नहीं है। इमोशनली किसी के ऊपर मतलब डिपेंडेंसी क्यों चाहिए होती है? क्यों हमें फील होता है कि आज मैं रो रही हूँ तो एक चाहिए इंसान जो मुझे क्योंकि समझे? हमें बचपन से आदत है, शुरू से जब हम छोटे से थे तब से मम्मी पापा कोई ना कोई तो ख्याल रखता ही आया है ना हमारा। जब छोटे थे रोते थे तो मम्मी आके कुछ खिला देती थी, कुछ पिला देती थी, बाहों में जकड़ लेती थी, आपको हक करती, तो सर वो बट वार्मथ, वो मेरे सारी चीजें ना। साथ वो सारी चीजें ना हमेशा एक गैप रहा। हम्म वो शायद इस वजह से ही होता है कि मेरे साथ ये पेन जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, क्योंकि होता है सर, पापा 2 साल बाद मम्मी, फिर बाबा, और फिर बीइंग एज ए एल्डर सिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी, तो उसमें मैं ना खुद को मतलब भूलती गई, बस करती रही। बट आज जब मुझे फील होता है ना सर, तो नोबडी इज देयर फॉर मी। हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है ना, वो लैक है एक, LAC के लैक। वो लैक बचपन से है क्योंकि यू केप्ट ऑन लूजिंग द पीपल whom you loved बस और whom you उससे wanted to बाहर be close निकलना to। है। बच्चे वो उससे तभी बाहर निकल पाओगे। देखो मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, ऐसा जरूर होगा, मुझे नहीं पता कब, ये आपका जीवन है कि एक्चुअली गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पे फंस जाओगे, चलो उसमें छोड़ देते हैं। इस लैक को जो हमने महसूस किया है इतने समय तक, इस लैक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वुड सजेस्ट यू हैव टू फिल इट थ्रू योर ओन। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा जो भी होता है कि कोई आएगा जो फिल करेगा कुछ हद तक, तो आप उसमें फंस जाओगे, आप सारी जिंदगी इंतजार करते रहोगे। तो उस लैक को किसी और से फिल मत करो, उस लैक को खुद से ही फिल करो।
कोई आएगा तो उसके साथ जुड़ो, क्योंकि वो जुड़ना भी टेम्पररी होगा, किसी के साथ जुड़ना टेम्पररी होता है। इसको पक्का मत करो। होता है कि हम इसको पक्का कर लेते हैं, जैसे ही कहीं से थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी पैम्परिंग मिलती है, हमें लगता है ये जीवन भर के लिए रहेगा। ये जीवन भर के लिए नहीं है, ये उस समय के लिए है, ये उस समय का सत्य है बस। अगर ऐसे जीवन को देखोगे तो जीवन आसान गुजरेगा। अगर हमें क्या है, हम पकड़ लेते हैं। अब पता है क्या है, आप नदी के अंदर हो, जीवन जो है ये नदी की तरह है, क्योंकि ये बह रहा है, ये बदल रहा है, इतना समझ में आता है। जो कल का लम्हा था वो आज नहीं हो सकता। कल एक रेस्टोरेंट में रात को 9 बजे 5 दोस्तों के साथ गए और बहुत मजे किए, तो आज उसी रेस्टोरेंट में दोबारा रात को 9 बजे उन्हीं दोस्तों के साथ जाओगे तो मजे नहीं आते। इतना समझ में आता है। दैट बेसिकली मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब आप समझो, आप एक नदी के अंदर हो, करेक्ट। अब नदी के अंदर बहाव होता है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बहाव में सब चीजें स्टेबल हो जाएं। पॉसिबल है? सोचो, बहते पानी में कभी कुछ स्टेबल हो सकता है? नहीं। हम स्टेबल ही तो करना चाहते हैं, हम उसको अटकाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं कि कल जो हुआ था आज भी वही, या कल जो नहीं हुआ था वो आज नहीं होना चाहिए। हम फंसे क्या हुए किस चीज में, कि जो होना चाहिए हमारे साथ वो होने नहीं रहा। थैंक यू राजश्री। जो होना चाहिए, हाँ मैं आपको फोन करता हूँ, बताता हूँ। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसलिए परेशानी है। और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो परेशानी है। तो छोड़ दो ना दोनों चीजों को। जो हो रहा है उसे भी एम्ब्रेस करते हैं, जो नहीं हो रहा है उसे भी एम्ब्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए है, महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि बहाव में हो, नदी में हो, नदी के अंदर समझ लो बोट के अंदर हो, ये बोट रुक नहीं सकती। हम उसको रोकना चाहते हैं। आप रोक भी लोगे ना बोट को तो पानी नहीं रुक सकता। पानी रुकता है क्या कभी? जो रुका हुआ पानी होता है बेटा वो गटर का पानी होता है। क्या फिर क्या होगा? बोट को भी रोक लोगे, पानी को भी रोकने की कोशिश करोगे तो गटर के अंदर हो, मतलब वहां से बदबू आती है। एक इमेजिन करो, एक बोट के अंदर हो और आसपास गटर है। अब हमें ऐसा लगता है गटर है, मैं बताऊं ये गटर भी नहीं होता। ये धीरे धीरे गटर दलदल बन जाता है, ये आपको डुबो देगा। होता है कि नहीं होता? होता है। लोगों की नाव जिंदगी के पास में तो डूब जाती है। यस सर। डिप्रेशन क्यों होता है? पास्ट में ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस वजह से मैं आज अटक गया हूँ। वो हो गया। मैं ही नहीं कह रहा कि बुरा नहीं हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ। लेकिन आप इकलौते इंसान हो जिसके साथ बुरा हुआ। पता नहीं कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके साथ आपसे भी कहीं ज्यादा बुरा हो चुका है और हो रहा है। वो भी तो अपना जीवन जी रहे हैं ना, क्योंकि जीवन का मतलब है उस नाव को बहते पानी की तरह आगे बढ़ाते रहना, अटकना नहीं है बस। तो जो भी जोड़ रहा है, जब खुद से भर लोगे तो किसी के साथ जुड़ाव ना अच्छा महसूस होगा। अदरवाइज क्या होगा? वो लूप होल कोई फिल करेगा, फिर वो लूप क्योंकि फिल हो रहा है, फिर लगेगा इसको पकड़ लो इसको कहीं नहीं जाने देना इसने मेरा होल फिल कर दिया है। करेक्ट? जो मेरे अंदर एक लैक था जीवन का, या जो मेरे अंदर प्रेम का लैक था या अटेंशन का लैक था, वो किसी ने फिल कर दिया ना। आई वांट टू होल्ड ऑन टू दैट पर्सन, अ मैन, अ वुमन, एनीवन। फिर वो क्या है, उसका जीवन कहीं और दिशा में गुजरेगा, वो कहीं जाएगा या जाएगी, फिर आप पकड़ लोगे उसका हाथ, फिर उसको जाने नहीं दोगे, फिर खुद को भी अटकाओगे, उसको भी अटकाओगे। हम खुद को भी खर्च करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे, कोई पॉइंट नहीं है। फिल योरसेल्फ। उसको छोड़ दो। अगर फिल नहीं कर सकते तो छोड़ दो। एक्सेप्ट कर लो इस बात को, दैट आई विल नॉट गेट दिस लव। खत्म कहानी। अब बोलो, दिस फॉर्म ऑफ लव that I've not experienced in my life, I will not get it. अब क्या प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं मिला। जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती तो क्या हो गया? मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिली जीवन के अंदर, तो बहुत सारी चीजें किसी दिन चिट्ठे खोलूंगा बहुत सारी चीजें नहीं मिली, तो अब तो या तो मैं सारा दिन ये सोच रहा हूँ ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। बहुत सारी चीजें और भी मिल गई। ये मिल गया, शेयर एंड ग्रो। नहीं सोचा था, मिल गया। तो फिर कुछ चीजें नहीं मिली, कुछ चीजें मिल गई। जो मिल गया उसे लेते हैं, एम्ब्रेस का। तो जो नहीं मिला उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गोपी जी बोलिए। For our entire life, we love, we lose, we gain, बहुत कुछ होता रहता है, and ultimately all of us mix with the dust. Sir, जब everything is temporary, फिर what is the purpose of our life?
हाँ, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, पर्पस कुछ होता नहीं है, पर्पस खुद क्रिएट करना पड़ता है इस जीवन को जीने के लिए, ये सत्य है। मतलब जैसे जैसे मैं भी आगे बढ़ता चला जाता हूँ वैसे वैसे चीजें समझ में आती हैं। पर्पस नाम की कोई चीज एक्चुअली है नहीं, पर्पस इज अ माइंड क्रिएटेड कॉन्सेप्ट। पर्पस इज समथिंग दैट यू क्रिएट ऑन योर ओन, वट एवर पर्पस यू वांट टू गिव इट टू योरसेल्फ। जैसे आपका बीइंग होगा वैसे आप कुछ पर्पस ढूंढ सकते हो। मतलब अगर मेरा बीइंग है, माई बीइंग, या मुझे इनर मोस्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है हाइपोथेटिकली टीचिंग में या हेल्पिंग में, राइट, तो मैं उसके इर्द गिर्द अपना पर्पस कुछ बना लेता हूँ, कुछ बन जाता है। तो क्या होता है, जो डिजायर होती है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं जोड़ देता है। बस इतना ही सिंपल है। अदरवाइज यहाँ अब क्या है ना, अगर हम कुछ पर्पस नहीं देते तो लाइफ बड़ी मीनिंगलेस लगती है, ऐसा लगता है जीवन है कर ही क्या रहे हैं। देन वी बिकम लाइक एनिमल्स। एनिमल्स ये होगा ना जिनका सर्वाइवल के अलावा कुछ है नहीं, वो अपना सर्वाइवल करते हैं, उनका कोई पर्पस तो होता नहीं, वो सर्वाइव करने के लिए इस प्लैनेट पे हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। अब ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दिमाग है, क्योंकि थॉट्स है, क्योंकि कॉन्शियसनेस है, क्योंकि अवेयरनेस, हमें लगता है वी कांट बी एनिमल्स, कि आएंगे और सर्वाइव करेंगे और निकल जाएंगे। कुछ तो करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे हम कुछ छाप छोड़ दें, या कुछ कर दें ऐसा, या कुछ लेगेसी छोड़ दें, या कुछ डिफरेंस क्रिएट करें, या कुछ तो करें। Whether it's through our art, whether it's through our work, whether it's through our corporate job, whether it's through our business, whether it's through money, whether it's through fame, whether it's through name, किसी ना किसी चीज के थ्रू कुछ करके जाए कुछ। एक्चुअली हम हर हाल में सिर्फ एग्जिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। दैट बेसिकली मीन्स हम अपने इम्प्रिंट्स छोड़ना चाहते हैं। तभी तो हम बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि हम अपना एक इम्प्रिंट छोड़ के जाते हैं। जो बच्चा आपके जैसा दिखता है, जो बच्चा आपकी आदतों में है, जो बच्चा आपके जैसे बात करता है, वो आपके गुण लेता है, आपकी कला लेता है, आपकी अच्छी आदतें, आपकी बुरी आदतें सब लेता है। ये इम्प्रिंट ही तो है छोड़ रहे हो फिजिकल फॉर्म में। तो हम इम्प्रिंट ही तो छोड़ रहे हैं जाने अनजाने में। तो बस हमें इम्प्रिंट चाहते हैं छोड़ना, और कुछ नहीं, बस इतना ही सिंपल है। तो हम उसके इर्द गिर्द कोई पर्पस बना लेते हैं। कुछ लोग पैसे को बनाते हैं, कुछ लोग नाम को बनाते हैं, कुछ लोग कंट्रीब्यूशन को बनाते हैं। जो आपको पर्पस बनाना आप बना सकते हो, बट द ओनली थिंग इज उस पर्पस पे फिर स्टिक होना भी थोड़ा जरूरी होता है। और पर्पस भी बदलते चले जाते हैं। हो सकता है कि 20 साल पहले पर्पस कोई और हो, 20 साल के बाद कुछ और पर्पस हो, अगले 20 साल के बाद कुछ और पर्पस हो, या अगले 10 साल के बाद। इट विल कीप चेंजिंग, इट हैज टू, बिकॉज अगेन वी आर इन द मूविंग बोट, इट कैन नॉट स्टे स्टिल। अगर वो स्टिल हो रहा है, अगर वो स्टैग्नेंट हो रहा है, तो मतलब आप अटक गए हो। अगर हर चीज बार बार वही हो रही है जो पहले कही थी, तो इसका मतलब अटक गए हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अगर कुछ नया निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब आप बहते पानी की तरह, क्योंकि बहते पानी में कुछ नया ही निकलेगा ना हर बारी। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, बस यही एक्सपीरियंसेस हैं, यही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और इसी में तो खुशी है कि भाई नदी में चल रहे थे, अचानक से एक टापू दिख गया, अचानक से एक आइलैंड दिख गया, तो ऐसे खुश हो गए, वाह दैट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड, आई कैन टेक रेस्ट। अब क्या होता है, जीवन इस आइलैंड पे बिताना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि नहीं यार ये आइलैंड मिल गया, इतना खूबसूरत है, यहाँ पे सब चीजें हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, आप कंफर्ट आ गया, आप कन्वीनियंस आ गया, नाउ आई वांट टू बी हियर। नो, लेट इट बी दिस आल्सो फॉर सम टाइम, मूव ऑन। यू नेवर नो व्हाट you'll see, what you'll witness, what you'll feel, what you'll believe. Got it? इतना simple. Thank you. Moving on to next. Just give me 1 second. I'll just mute. Okay. Yes. Moving on to the next. किसी और ने हाथ उठाया तो सुष्मिता रेड्डी जी. Yes. Yes. Yes, sir. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Can you switch on your video, please? Yes, 2 minutes, sir. Okay, no problem. We'll wait. Hello. हाँ जी. Good afternoon, हाँ जी, sir. बोलिए. Good afternoon. So I wanted to ask that how to identify what is the correct choice for us. Like, if
means there are two choices, this or that. So which thing will be suitable for us? How to know that thing? Means sometimes we get confused that if we choose this, it's good, but afterwards, sometimes in back in our mind, we think that Yeah. no, we should choose this thing. It is better than. देखो सारा खेल यही है बस, this versus that, confusion. और confusion हमेशा दो चीजों में होती है, एक चीज में कोई confusion नहीं है ना, अगर मेरे पास काम नहीं है, करेक्ट, मैं 6 महीने से खाली बैठा हूँ, कोई काम आता है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ना, आई हैव टू टेक इट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मेरी पिछली फिल्म सुपरहिट हो गई है, अब मेरे पास 3 बेस्ट फिल्मों की ऑफर है, अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कौन से करूं, क्योंकि मैं एक ही कर सकता हूँ। सबकी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द चॉइसेस। अब ये जो रास्ता है ना, ये चॉइसेस एलिमिनेट करने का, जिस चॉइस को आप एलिमिनेट करोगे ना, ये आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। मतलब एक चॉइस को लोगे तो एक को एलिमिनेट करोगे ना, एलिमिनेशन के लिए 100% ट्रूथ, खुद से एलिमिनेशन के लिए 100% श्योरिटी चाहिए होती है। मतलब सपोज मेरे को 2 लोगों ने बुलाया, एक ने बुलाया पार्टी के लिए, करेक्ट, और एक ने बुलाया चलो लंच के लिए, करेक्ट। अब मुझे पता है जब हम पार्टी के लिए जाएंगे तो वहां पे हाइपोथेटिकली अल्कोहल होगा या स्मोकिंग होगी या म्यूजिक चलेगा या उस तरह का माहौल। अगर मैं 100% श्योर हूं कि मुझे ये नहीं करना है, तो मेरे लिए डिसीजन लेना 1 सेकंड का काम है, दैट आई विल गो टू द लंच एंड हैव सम अमेजिंग कन्वर्सेशंस एंड हैव सम लवली फूड एंड कम आउट, करेक्ट। ये कब हो पाए? जब मैं 100% श्योर हूं कि मुझे ये नहीं करना है। अगर मैं 99% श्योर हूंगा तो मैं टक जाऊंगा, या 95% श्योर हूंगा कि नहीं यार जा सकते हैं, मे बी आई कैन ड्रिंक, maybe I don't know, I'll get someone who will be from a bigger production house and he will see me in the party, और शायद वो मुझे कोई बड़ा काम भी दे देंगे। आप समझे अब क्या हो रहा है ना? कौन कहीं से आवाज आ रही है प्लीज? अच्छा, आई थिंक आपके यहाँ से आ रही है, कोई नहीं। तो I'm saying when you're 95% sure, you get stuck. When you're 100% sure, the decision making is easy. So instead of knowing that ये choice लेनी है, मैं कहूँगा try to start eliminating the choice. In the sense अगर 2 choice है, हम क्या करते हैं कि कौन सी लेनी है, कौन सी एक्सेप्ट करनी है, इसमें फंस जाते हैं। मैं कह रहा हूँ उसमें से कोशिश अब ये करें रिवर्स अप्रोच की, एलिमिनेट कौन सा करना है, तो जो बचेगा वो मेरा होगा, कि ये नहीं करना है। आप समझे? यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन रादर देन कि चूज कौन सा करना है। हम चूज में फंस जाते हैं कि ये चूज करें, ये चूज करें। मैं कह रहा हूँ इन दोनों में, ये 2 चीजें मेरे सामने, अब इसमें से एलिमिनेट कौन सा करना है, ये देखो जिंदगी में कि यार ये ठीक नहीं लगा, इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो यही बचेगा। ट्राई दिस, क्योंकि ये हर किसी को खुद ही करनी पड़ती। ये जो जर्नी है ना, ये यही है कि खुद को स्थिर कैसे रखना है, खुद की चॉइसेस के लिए एब्सोल्युटली श्योर कैसे होना है। क्लैरिटी जब होगी तो चॉइसेस और कंफ्यूजन्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है हमें, वो क्लैरिटी तो लानी है। रोज अपने आप पे काम करने का मतलब है क्लियर हो जाना। हम रोज जब काम करते हैं अपने ऊपर, रोज किताब पढ़ते हैं, रोज एक दूसरे से समझते हैं, रोज सीखते हैं, लोग लर्न करते हैं, रोज कुछ इनबॉक्स में डालते हैं, बहुत सारी चीजें रोज मैं क्यों करता हूँ? ये रोज जो अपनी कंडीशनिंग हो रही है ना, इट इज ओनली एंड ओनली गिविंग मी क्लैरिटी, इट इज रिमूविंग ऑल दस चॉइसेस, राइट। जब वो चॉइसेस रिमूव हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। जब डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी तो जीवन बहुत सरल और सुंदर और सिंपल हो जाएगा, बिकॉज एट द मोमेंट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, यू एब्सोल्युटली नो, करेक्ट। तो वो श्योरिटी रखनी जरूरी है। सर बट कभी कभी ऐसे लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, तो इन दोनों में से कैसे, इन दोनों भी सुटेबल लगता है या जो भी है करेक्ट है, बट उस तो टाइम पे तो एक्सपीरियंस करके कंफ्यूजन देखो होता फिर, है। दोनों को कैसे? या तो दोनों को एक्सपीरियंस करो, नहीं तो एक को अभी एक्सपीरियंस करो, एक दोबारा एक्सपीरियंस करो, देखो उसका क्या रिजल्ट आता है। बट कभी कभी तो ऐसे भी होता है ना सर कि एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं बट दूसरा नेक्स्ट टाइम मिल नहीं सकता है चांस। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा इस पूरे ब्रह्मांड में। या तो मैं यहाँ पर इस समय आपके साथ बैठ सकता हूँ, या फिर मैं टीवी देख सकता हूँ, करेक्ट। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना, दोनों चीजें साथ में तो नहीं हो सकती। तो जो छूट गया वो छूट गया, जो ले लिया उसको अच्छा बनाओ और आगे बढ़ो। बट At one time anyone can take only one choice,
करेक्ट, आई एम सेइंग वट एवर चॉइस, होता क्या हम फंस कहाँ रहे हैं, हम चॉइस में नहीं फंस रहे, हम चॉइस के एक्सपीरियंस में नहीं फंस रहे, हम चॉइस के एंड रिजल्ट में फंस रहे हैं। कि हमने जो चॉइस ली उसका अगर एंड रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो गड़बड़ हो गई ना, इसी में फंस रहे हो ना। करेक्ट तो कुछ नहीं होता बच्चे, एंड रिजल्ट तो किसी भी चीज का हर बार आपके फेवर में होगा नहीं। आपने कोई चॉइस ली, मैं यहाँ से रोड पे निकला, दो रास्ते जा रहे थे, अब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा रास्ते पे जाना है, करेक्ट। जो रास्ता होना चाहिए था मैंने वो नहीं लिया, मैंने दूसरा ले लिया, वो गोल गोल घुमा के कहीं और ही मुझे लेके चला गया, करेक्ट। अब हाँ। चॉइस में कोई गड़बड़ नहीं थी उस समय, मेरी इंस्टिंक्ट ने कहा या मेरी चॉइस ने कहा कि ये ले लेते हैं रास्ता राइट वाला, मैंने ले लिया, करेक्ट। मैंने रास्ता ले लिया राइट वाला, लेकिन उस रास्ते में बढ़ते चले गए वो कहीं और घुमा के ले गया। अब रास्ते पे चलने का एक्सपीरियंस तो मेरे पास रह गया, लेकिन एंड रिजल्ट गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं कहीं और चला गया। तो क्या हो गया, एक बार ये गलती हो गई, एंड रिजल्ट कुछ अलग आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस घूम के आ जाओ। थोड़ा रास्ता लंबा हो जाएगा, थोड़ा कहीं और घूम के आना पड़ेगा वापस उस तरफ, और क्या होगा। होता क्या, हम उसमें अटक जाते हैं कि मैंने चॉइस ली थी, अब इसका एंड रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो हो गया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चॉइसेस लेते हैं, हर चीज थोड़ा ना एग्जैक्टली सेम होती है। मैंने जिंदगी में इतनी सारी चॉइसेस ली हैं, आपको क्या लगता है सारी चॉइसेस एग्जैक्टली वही हुई हैं जो मैंने लिया है? एब्सोल्युटली नॉट। उसमें से 1% चॉइस मेरी होगी, बाकी सब जो मैंने किया वो सब ऊबड़ खाबड़ हुआ है। 100% है ये, 1% मैंने कुछ सोचा होगा तो शायद पूरा हो गया होगा, बाकी 99% जो नहीं सोचा सब ऊबड़ खापड़ हुआ है। जो सोचा था वो तो बिल्कुल गड़बड़ हुई है, और जो नहीं सोचा तो हमेशा मेरे लिए बेहतर हुआ, इतना मुझे पता। औरों के लिए गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सबका सब्जेक्टिव है। वो शॉर्ट टर्म में शायद लगता है, सॉरी टू कट यू इन, वो शॉर्ट टर्म में लगता है कि गड़बड़ हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे जाता है, ऐसा भी होता है। बोलिए सर, बट एक एक इंस्टिंक्ट आता है कि ये सही रहेगा या मेरे लिए ये नहीं रहेगा, तो वो चीज को पापा इस टाइम पे सही है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट थिंग? देखो, इंस्टिंक्ट तब जागृत होती है जब अंदर साइलेंस और ठहराव और स्पेस आती है। अगर अंदर ठहराव है, अंदर साइलेंस है, तो इंस्टिंक्ट धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। इसलिए 5 AM शुरू किया, जो हम अगले हफ्ते से दोबारा शुरू कर रहे हैं। We took a break for 5 AM. We're starting again from next Sunday. ये एक announcement भी हो जाएगी। Again, the session timings मेरे ख्याल से वो 12 साढ़े 12 के आसपास ही रखेंगे। But every Sunday will start. And again, 3 sessions per week. 3 sessions per month or whatever. मैं भूल ही गया। So 3 Sundays basically we do the sessions for the course. तो खैर गोपी जी बताएंगे, और कल तो creative चले जाएंगे सब। So I'm saying, जब आप थोड़ा शांत होगे, जब खुद के साथ थोड़ा alignment में होंगे, तब इंस्टिंक्ट जागृत होती है। वो इंस्टिंक्ट या वो हायर सेल्फ जिसके हम बात कर रहे थे, वो आपको सही जगह पे पहुंचाता है जब आप अलाइनमेंट में होगे यूनिवर्स के साथ, या जब आपकी इंस्टिंक्ट अच्छे से जागृत हो जाएगी। उससे पहले नहीं होगा। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सा खुद को शांत, स्थिर, अपने आप को और समझना, अपनी इंस्टिंक्ट जो आ रही है उसको एक्सपेरिमेंट करते रहना कि अच्छा ये इंस्टिंक्ट थी या ये थॉट था। कंफ्यूजन क्या होती है, समझ में नहीं आता इंस्टिंक्ट क्या और थॉट क्या है, यहीं फंसते हैं ना। थॉट उल्टा सीधा भगा देता है, इंस्टिंक्ट सही जगह पहुंचाना चाहती है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये इंस्टिंक्ट थी या थॉट। हाँ, तो बच्चे, दिस विल ओनली हैपन बाय एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योरसेल्फ। कि आप ट्राई करो तो समझ, तो वो डिस्टिंक्शन मैं समझा नहीं पाऊंगा ना। डिस्टिंक्शन मैं कैसे समझाऊंगा कि आपके अंदर का ये थॉट आया कि इंस्टिंक्ट आया। हाँ, ये आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, या हार्ट बोल रहा है, दोनों में से कंफ्यूजन। ये आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। बट इतना थोड़ा कह सकता हूँ कि जो पहली चीज आती है ना वो इंस्टिंक्ट होती है, बाकी उसके बाद दिमाग कहानी बनाता है। मतलब कोई भी पहली इंस्टिंक्ट, मतलब अगर मैं रोड पे गया और मैंने कहा ये रास्ता सही, अंदर से एक इंस्टिंक्ट आई, लेकिन दिमाग ने कहा नहीं यहाँ पे रिक्शा चल रहे हैं, यहाँ पे ऑटो चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे, तो ये माइंड आ गया बीच में। इतना समझा सकता हूँ बस अभी, बाकी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो व्हाटएवर द प्रोज एंड कॉन्स एंड थॉट्स एंड एंटेंगलमेंट इज क्रिएटेड बाय माइंड, इंस्टिंक्ट को कोई प्रोज एंड कॉन्स एंड एंटेंगलमेंट नहीं चाहिए। वो आजाद है, वो आजाद पंछी है। इंस्टिंक्ट को कोई लेना देना नहीं कि यहाँ से नैनीताल का रास्ता 10 घंटे में गुजरेगा, 20 घंटे में गुजरेगा, 40 घंटे में गुजरेगा, पैदल जाओगे तो क्या होगा। नहीं, इंस्टिंक्ट को कोई लेना देना नहीं। उसको इतना पता कि यहाँ से आपको पहुंचाना है, करेक्ट। और शायद आप पैदल जाओगे जिसमें पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है वहां से कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस हो जो आपको जिंदगी में कुछ बना दे जो आप बनना चाहो।
आप समझे? माइंड क्या कहेगा, नहीं नहीं बिना पैदल कैसी अजीब सी बात है, हम तो टैक्सी में जाएंगे, हम ऊबर में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप समझे मेरी बात? These are all pros and cons, but instinct has no pros and cons. Instinct is instinct. इसकी कोई वो नहीं है। हम क्या करते हैं हर बारी ना, क्योंकि माइंड हमें सिखाया ऐसा गया, कंडीशन ही ऐसा किया है कि 1 + 1 = 2। इंस्टिंक्ट में 1 + 1 0 भी हो सकता है, 1 + 1 इंफिनिटी भी हो सकता है, 1 + 1 कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? क्योंकि ब्रह्मांड में 1 + 1 2 कुछ होता नहीं है। यहाँ पे अचानक से कुछ हो जाएगा। अचानक से रोड पे निकलोगे, पता लगेगा किसी की मृत्यु हो गई। अचानक से कल जिससे बात हो रही थी आज वो है ही नहीं। तो यही तो है, कौन सा 1 + 1 2? ये तो हमने मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी बना रखी है कि एवरेज एज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज 65। बट कौन सी 65? क्या लोगों की मृत्यु नहीं हो रही अपने आसपास 35 में, 40 में? देख नहीं रहे क्या? तो फिर ये तो दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें कुछ तो पता हो, हमें लगे तो से हम इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे ईगो भी प्ले करती है। हमें पता तो हो हम इस ब्रह्मांड में आए, हमें कुछ नहीं कर पा रहे, हमें पता होना चाहिए। We always want to know and we always want to control, and the universe will never let you control, because universe is beyond. Universe has created you. You have not created the universe. सत्य है ना? Hello, sir. Your हम voice. बांधना चाहते हैं, हम रिलेशनशिप्स में भी बांधना चाहते हैं। यस, Hello. कोई हम बांधना चाहते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, yes. आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? The video was also stopped. I'm saying कोई नहीं, अभी ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके, I'm saying हम बांधना चाहते हैं, हम रिश्तों में भी बांधना चाहते हैं, क्योंकि हम डरे हुए बहुत ज्यादा है। जो डरा हुआ होता है वो बांधता है, जो डरा हुआ नहीं होता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जाना है दरवाजा खुला है, चला जाए, खत्म कहानी। So the final thing is we should go on with the flow. फाइनल थिंग तो पता नहीं क्या है बच्चे, वो तो आप खुद डिवाइस करो। Okay. जो आपका माइंड कहेगा वही आप डिवाइस करोगे, जो आप डिवाइस करना चाहोगे वो डिवाइस करोगे। मेरे कहने से पता ना कुछ होने वाला है। जैसे आप मेरी बात को सुनोगे, जैसे आप परसीव करोगे, देखो मैं बोल तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन जैसे आप परसीव करोगे तो आपकी कंडीशनिंग है ना। मैं एक लाइन को सबको बोलता हूँ, हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है ना, क्योंकि वो उनकी परसीव्ड कंडीशनिंग है, उनकी परसेप्शन है। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। जो आपको डिवाइस करना है डिवाइस कर लो, जो आपके लिए सही ताल बैठ जाए जिसमें। Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. And Okay, also Sunanda. thank हाँ, you. जी, बोलिए। And also thank you the last session which we did about overcoming the fears that so it has helped me a Surrender वाला lot. सेशन कौन सा? Surrender नहीं. आपने कौन सा सेशन? Actually, I have said about that I have fears in my mind. So that So it for benefited that. you? Yes. You're most I'm welcome. trying Thank you. to cover it up. Thank you so much for that. कोई नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक दिन में तो कुछ नहीं हल होगा, नहीं, किसी के नहीं। लिए भी जीवन में एक दिन में हल नहीं Sometimes होता। मेरे still अपने I जीवन get में नहीं हल हुआ aggressive. तो Sometimes still I get aggressive, but yeah, I'm able to talk with them properly and make them and try to make them understand what I wanted. Hello, फिर से रुक गया ये. Hello. You are audible. Oh, sorry. Wonderful. Hello. Keep trying. Thank you. Yes, I'm saying wonderful. Keep trying. Thank you. My internet connection is unstable. Thank you so much. Thank you. Okay, moving on to Sunanda ji. Thank you, Sunanda ji. Yes, can you please switch on your video? और आपका सवाल? आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। Can you guys hear me? Yes, sir. Okay, great. हाँ जी, सुनंदा जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है? कैन यू स्पीक आउट योर क्वेश्चन? सुनंदा जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। कोई नहीं, किसी और को कुछ सवाल पूछना? मैं रुखसार खान, मुझे बात करनी थी आपसे। एक्चुअली उस टाइम मैं एक किसको? क्वेश्चन था मेरे माइंड में, तो मैं बात नहीं कर पाई। रुखसार। रुखसार, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? यस सर।
Just a moment. प्लीज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी रुखसार जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर एक्चुअली जो दिव्या मैम का था ना इशू, लाइक इशू तो मेरा भी सेम ही था, बट मुझे एक और प्रॉब्लम है, माय पर्सनल रिलेशनशिप, कि मुझे कमिटमेंट नहीं है, तो क्या मुझे उस चीज पे रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आप कमिटमेंट फोबिक हैं, आप ये कह रही हैं? हाँ, मतलब कि मैं तो किसी भी हो चीज में सकता अगर है। इन्वॉल्व हूँ तो मैं अगर कर पाऊंगी तो मैं कमिटमेंट करती हूँ, और मैं किसी का जैसे इन्वॉल्व हूँ तो वहां से मुझे वो कमिटमेंट नहीं है कि मतलब नहीं फ्यूचरिंग हम आप साथ वन होंगे। सेकंड, सॉरी, वन सेकंड, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रही हैं, सामने वाला नहीं दे पा रहा है? सामने वाले। ओके, वो कमिटमेंट फोबिक हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। यस 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 यस। ओके, तो अब आप क्या चाह रही हाँ हैं, जी। बताइए मुझे, क्या सवाल है? मतलब मेरा ये है कि मुझे उस चीज को आगे करना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब मुझे अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए देखिए, या फिर उस ये चीज के लिए मुझे थोड़ा ये टाइम देके। डिसीजन, आई एग्री, ये डिसीजन बड़ा पर्सनल है, पहली बात तो इंडिविजुअलिस्टिक है। अम, अब बात यहाँ हम्म। पर आती है कि अगर सामने वाला कमिटमेंट फोबिक है, कि वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो पहली बात क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनके घर परिवार में ऐसा कुछ हुआ है इसकी हम्म। वजह से? हम्म। क्योंकि घर परिवार में कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, वो बच्चे के ऊपर बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा डरता रहता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए जो उसके परिवार सदस्यों के साथ हुआ है। करेक्ट? तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आप समझ सकती हैं और उन्हें समझा सकती हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा आप दोनों के बीच में, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझना चाहते, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं इस तरह का है, तो फिर ये आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आप अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ काटना चाहती हैं, उनके साथ बिताना चाहती हैं कि जो आपको कमिटमेंट नहीं भी दे रहे लेकिन आप उनके साथ रहना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको कमिटमेंट देंगे और आप उनके साथ बिताना चाहेंगे। ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है आपका। रुखसार जी, आर यू हियर? हेलो? ओके, कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एनीवन एल्स? सुनंदा जी, आप सवाल पूछना चाहेंगी? आपने हाथ खड़ा किया था। Sir, can I ask? You want to ask another question? Yes, sir. Sir, ABC में अलाउड नहीं होता दूसरा सवाल पूछना। पूछो पूछो, चलो, let it be the Yes. last question, after that we'll wrap up, you guys have lunch, okay? सर बोलिए। जैसे कि वो रिजेक्शन के बाद ऐसे सेल्फ डाउट आता है कि एम आई वर्दी, मतलब ये लाइक वो कि मतलब वो सेल्फ डाउट आता है कि मेरी गलती थी, अब एम आई वर्दी, या फिर मैं इतनी वो नहीं हूँ, तो वो सर वो सेल्फ डाउट को कैसे डील करना चाहिए? देखो, पता है क्या है, रिजेक्शन का मतलब है ना। करेक्ट? दिन में जब 10 बारी नीचे जाते हो, सामान खरीदते हो 50 जगह, क्या आपको लगता है आपको ना नहीं मिलती है? आपने मांगा, किसी स्टोर पे गए, आपने कहा चॉकलेट है भैया, डार्क चॉकलेट, उसने मना कर दिया कि डार्क चॉकलेट नहीं है, तो क्या होता है? बुरा मान जाते हो? सेल्फ डाउट होता है? नहीं होता ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ना सुनने की आदत नहीं है, ना तो रोज ही सुनते हो। लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पर्सनल इंटीमेसी होती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, वहां पे जब कोई ना बोलता है तो मुझे लगता है वो हमारे अस्तित्व पे बात आ जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती वो बात। हम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और हम ना चाहते नहीं है वहां से, तो जब ना मिल जाती है, इट जस्ट स्टार्ट्स टू ब्रेक अस, एंड फिर हम खुद पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, इसको थोड़ा समझिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आपका अस्तित्व क्या है। हम दूसरे पे अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उससे वैलिडेशन मांगते हैं हर बारी। हम वैलिडेशन मांगते हैं ना कि वो अगर सही कह रहा है तो हम सही हैं, वो गलत कह रहा है तो गलत है। कोई दूसरा आपको आपके बारे में कैसे बताएगा? तभी तो कहते हैं कि खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हो तो आप दूसरे पे आपकी आपकी नाव टिकी नहीं है ना। आपकी नाव है बहते पानी में, आप हो, चप्पू आपके हाथ में होना चाहिए ना। चप्पू अगर दूसरे के हाथ में होगा तो कहीं पे भी लेके चला जाएगा, फिर किसी दिन वो चप्पू के साथ खुद भी डूब गया पानी के अंदर तो आपको भी डुबो देगा। तो नाव आपकी है, पानी में बह रहे हो, चप्पू आपका होना चाहिए ना। यू विल डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। somebody else will come and put some fears in you, put some self doubt in you,
you start feeling and believing that this is the ultimate truth. Yes sir. करेक्ट है ना? Right. मैं आपको कहता हूँ कि दिव्या जी, अगर आप महसूस कर सकते हैं तो महसूस कीजिए इस बात को कि आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड इस समय है। लेकिन ये महसूस नहीं होगी बात। लेकिन मैं कह दूंगा एक सेकंड में कि दिव्या जी, आई फील यू वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। 1 मिनट में हाँ आ जाएगी, ऐसे जो आ रही है। आप समझे हो क्या रहा है? Yes sir. तो हमें ना आदत पड़ गई, जैसे ही जरा सा कोई कुछ हल्का सा नेगेटिवली बोल देता है तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक यही करते आ रहे हैं। किसी ने खामियां निकाली, उस खामियों को पकड़ लेते हैं और खुद के अंदर सेल्फ डाउट करते हैं। लेकिन जरा सी कोई खूबी दिखाता है, खूबी हमारे बारे में बताता है, तो हम थैंक यू बोलने के बजाय खुद पे डाउट करते हैं कि वाकई में ही am I looking beautiful today? No. It's because of the dress. It's because of the makeup. Yes, correct. It's because of this, it's because of that. It's because we don't know how to accept with grace. We don't know how to accept जो हमारे अंदर है। हम हर चीज को, दिमाग सिर्फ लैक की तरफ जा रहा है, इसलिए ग्रैटिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैक ही तो है कि ये कमी है, ये खामी है, ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी थी, इस वजह से ऐसा हो गया। तो सेल्फ डाउट, फियर। कौन सा यहाँ पर इंसान है जिसमें कमियां नहीं है? आप बताइए। भर के यहाँ पे कमियां इसके अंदर, मेरे अंदर, मेरे अस्तित्व में। मुझे पता है कितनी सारी खामियां, हम कॉन्स्टेंटली उसको वी कीप अपग्रेडिंग, वी कीप इवॉल्विंग, वी कीप अंडरस्टैंडिंग, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। It's okay, they're part of life. Mistakes are a part of life. Let it be. Rejection का मतलब ये नहीं है that you don't exist anymore. हो गया, मना कर दिया, उसके लिए आप मना हो। 800 करोड़ लोगों में से एक इंसान के लिए आप मना हो, बस। बाकी लोग नहीं है क्या इस दुनिया के अंदर जो शायद पलकों पे भी बिठाएंगे, पता नहीं, मैं नो। हो तो कुछ भी सकता है ना। कोई दूसरे को कभी ये डिसाइड मत करने दो कि आप अपने जीवन में क्या करने वाले हो और कैसे हो और कैसे रहोगे। कोई दूसरा ही डिसाइड नहीं कर सकता। करेगा तो फिर आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। यस सर। फिर फंस जाओगे। Let no one breed any kind of fear and self-doubt in you. This is for everyone. Let no one meaning no one, including everyone, including your parents, your siblings, your spouse, your best friend, your girlfriend, your anyone. अगर कोई breed कर रहा है self-doubt और fear, फिर सोच लो के साथ में रहना भी है कि नहीं रहना है। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके अंदर fears डाल रहा है, वो खुद कितना डरा हुआ होगा, सोचो। जो आपके अंदर फियर डाल रहा है, जाने या अनजाने में, वो खुद कितना डरा हुआ होगा, ये सोचो। एक डरे हुए इंसान के साथ रहोगे तो क्या एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होगा? एक डरा हुआ इंसान दूसरों को डर देता है, एक डरा हुआ इंसान दूसरों के अंदर सेल्फ डाउट देता है, तो क्या होगा फिर? डर में प्रेम नहीं है, डर में खुशी नहीं है, डर में चैन नहीं है, डर में सुकून नहीं है, क्योंकि डर में तो रेस्टलेसनेस है। यस। डर में दुख है, डर में पेन है, डर में दर्द है, डर में पेन है, डर में सफरिंग है, डर में यही सब तो है। क्योंकि सब डर से तो जर्मिनेट होता है, इसका जन्म ही वहीं से होता है। तो लेट नो वन ब्रीड एनी काइंड ऑफ फियर एंड सेल्फ डाउट इन यू। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये जिंदगी आपकी है। जो मैं एंट्री करने के लिए दूंगा वही एंटर होता है यहाँ पर। जो एंट्री के लिए नहीं दूंगा उसके लिए नो एंट्री बोर्ड है भाई, बाहर। सिंपल, नो एंट्री बैरियर है। हर कोई नहीं आ सकता। जो लगेगा, जिसके आने से ये अस्तित्व जागृत होता है, जिसके आने से यहाँ पे कुछ ग्रोथ होती है, वही आता है। उसी के लिए समय है, उसी के लिए एनर्जी है। जिसके आने से ये कहीं न कहीं अस्तित्व बिगड़ रहा है बार बार, तो उसके लिए नो एंट्री बोर्ड है। प्लीज, थैंक यू। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू, बट नॉट एनी मोर। Say thank you, move out. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, everyone. Thank you so much. I will see you back again now on Sunday. We will also try if we can keep a session on Wednesday, but Sunday the 5 AM transformation we have started. You guys can join it. सर मुझे एक सेंटेंस कहना है। से बात कर लीजिए। Sorry. मुझे एक सेंटेंस कहना है जो मैंने आज रीड किया। बोलिए। We suffer more often in imagination than in reality. So there's nothing in this world that can trouble you as much as your own thoughts. So stop overthinking. Wonderful. बस आपके ही अपने थॉट्स हैं। Thank you, Shrisha. That's wonderful. आपके अपने थॉट्स ही हैं जो इधर उधर घुमा रहे हैं गोल गोल।
थॉट्स को छोड़िए, थॉट्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब कैसे समझाऊं, थॉट्स आपको गोल 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 घुमाते रहते हैं। हमने सरेंडर के सेशन में बात की ना थॉट्स के बारे में, आज सेशन अपलोड होगा यूट्यूब पे, वॉच इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड थॉट्स को कैसे कम करना है एंड हाउ वी सरेंडर एंड हाउ वी मूव बियॉन्ड थॉट्स। ट्राई दिस, ओके? Thank you so much. Hello. See you soon. Back again. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you, हाँ जी, sir. कौन Thank बोल you रहा so है? much, One sir. second. Thank you. एक सेकंड Thank you, sir. पटेल, धरती पटेल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Hello. तो Thank you. एक मिनट, थैंक यू बोल, बस Thank थैंक यू you. बोलना चाह रही थी, मुझे लगा कुछ कहना चाह रही थी। Hello, मैंने कहा पहली hello, बार sir. कुछ कह रही है तो मैं रुक गया। Hello, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Hello, sir. Thank you, sir. Hello, Thank you. कौन बोल रहा Thank है? you so कौन much, बोल sir. रहा है? Sushmita.